Namaskar and welcome to our podcast Twinning with Twins. Myself Arundhati Sathe and my twin sister Anamika Patil. We both are here to have a good conversation with the people and guests with us. Yesterday we were fortunate enough to have our guest speaker, architect Habib Khan and Dr. Smita Khan with us, a very well known and profound designer in our fraternity. Let's welcome them and have a good conversation. Before that, it's my responsibility to introduce them. Architect Habib Khan is a former president of Council of Architecture, whereas Dr. Smita Khan is an assistant professor at VNIT College, Nagpur, both practicing as SHK architects in Nagpur. Architect Habib Khan is also a director at Priyadarshini College of Architecture, and ma'am always a supporting to them. Also, they are graduated from VNIT College and then masters from USA. Both have a good practice in USA, and now let's have a conversation with them. So, first of all, I welcome you all and thank you for accepting my invitation. Pleasure always. So, it was on a very quick start and on a very simple way. I feel honored that you are here. Absolutely our pleasure. The thought is very old that somehow I want to catch you because I'm fond of you since my college days. I was Right. practicing my interior design internships, and when I was after my graduation, I was searching for the office spaces. I always have that in mind that how I can get to you, but things didn't went at that moment. But when I was in college, I heard about you that you are deeply into the design and you are deeply into it. You're somewhere different from how other people work and what are the philosophies and the conventional style, the traditional way you are designing and practicing. There are so many questions from so many years. I will try to make it very crisp and very short so that we will save all of our time. We are feeling like senior citizens now, कि अभी रिटायर होने का टाइम आ गया है अभी. नहीं बिल्कुल रिटायर होने का टाइम नहीं है. इट्स दैट आई फील थैंक एज वेल एंड आई फील लाइक ये इतना लेट क्यों हो गया. बट ओके, रेस्ट अपार्ट, दिस इज अ गुड टाइम टुडे. देर है दुरुस्त है. देर है दुरुस्त है, करेक्ट. तो मैंने कुछ शायरी भी सोची थी कि एज यू आर फॉन्ड ऑफ शायरी, तो एक छोटा सा कहीं तो मिला था. सो आई जस्ट हैव फॉर यू. जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे कम बनाए हैं. वाह. जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारे ऑफिस में आए हैं. वाह. वेरी थैंक यू सो मच. तो ऑल इमोशंस कम्स. I did not know all this about you. How do you feel about us? Okay. So you are in this industry for so long, and go back to your college days. I told my college days. Now your college days, how you came into architecture and what are the things you inspire you to be here. I would like to ask Habib Khan sir to first question the answer and then Smita Khan ma'am. No, I came into architecture because यहाँ साइंस नहीं लगती थी. Physics, chemistry, mathematics. I was very poor in physics, chemistry, mathematics. I was always good with my hand. I was an artist kind of thing. बचपन से ही, starting से. So when I came to Nagpur, we were in CBSE board, Kendriya Vidyalaya Central School. So that was all CBSE because father used to get transferred across the country. तो वो बड़ा tough था, physics, chemistry, mathematics. और मुझे वो जो mathematics की logic अभी तक नहीं समझी है. वो integral क्या रहता है, वो integration, algebra, वो जो रहता है वो अब आज तक नहीं समझ में आया क्यों करते हैं. मतलब ये हिंदू, मतलब आदमी का बनाया हुआ सब खेल है और उसके पीछे मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कर दिया, कभी मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ी मतलब एक्चुअली. सो आई यूज्ड टू गो टू डेकोले सर फॉर लर्निंग पेंटिंग एंड स्केचिंग एंड ऑल समथिंग. और हमारे एक टीचर थे आरडे सर करके थे, नागेश आरडे. अपना वो मंजरी टेक्सटाइल नहीं है क्या? हाँ, उनकी डॉटर इन लॉ का है वो. तो उसने बोला यार ये तू बहुत ही वीक है यार, तू 12th पास कैसे होगा, हाउ विल यू क्वालिफाई इन 12th एग्जामिनेशन. आज ऐसा जैसे भी ऐसे हो तो जाएंगे, मतलब फेल तो नहीं होंगे पक्का. एंड इंजीनियरिंग पढ़नी नहीं है मुझे, तो कह रहे फिर तू आर्किटेक्ट बन जा. आई डिडंट नो व्हाट आर्किटेक्चर वाज, क्या होता है आर्किटेक्ट. आई मीन फर्स्ट जनरेशन आर्किटेक्ट्स हैं वो, तो फर्स्ट जनरेशन आर्किटेक्ट्स. तो वो जो भी है विल से चलो देखेंगे आर्किटेक्ट बन जाते हैं. ऐसे उसमें फिजिक्स रहती है, कहते नहीं मैथमेटिक्स नहीं. तो मैं फिर परफेक्ट किया मेरे लिए ब्रांच है. फिर डेकोले सर मिले, तो डेकोले सर कह रहे चल मैं तेरे को ट्रेन कर देता हूँ, मैं क्लासेस चलाता हूँ पंचशील थिएटर के ऊपर में. हाँ, कुछ महाराष्ट्र समथिंग फाइन है. ओल्डर डेकोले सर. ओल्डर, हाँ ओल्डर. हाँ, आई मीन विश्वास वाज येट टू बिकम एन आर्किटेक्ट, ही वाज जस्ट लर्निंग टू बिकम एन आर्किटेक्ट. आई थिंक ही वाज अ स्टूडेंट आर्किटेक्ट. सो दैट्स हाउ इसे आर्किटेक्चर करना है. तो फिर उसके एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी की, फिर वो एलिमेंट्री एग्जाम और इंटरमीडिएट एग्जाम वो सब दिया मैंने. कह रहे वो कंपलसरी है उसके ऊपर. हालांकि कोई कंपलसरी नहीं था, पर बोले कंपलसरी है तो कर लिया. दैट्स हाउ वी केम इनटू आर्किटेक्चर. अदरवाइज मेरे नो आइडिया कि व्हाट आर्किटेक्चर वाज, क्या करते हैं आर्किटेक्ट्स, कुछ भी मालूम नहीं सर.
एंड दैट्स हाउ आई केम। उस टाइम पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता था एक, जैसे अभी नाटा होता है ना, वैसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता था। वो हर कॉलेज का अलग अलग, मतलब तो मैं जेजे का दिया, जेजे का बॉम्बे में जाके दिया, फिर यहाँ का दिया, नागपुर का बीआरसी था उस टाइम पे, और 2-3 और दिए, सीट दिया, एनआईडी का दिया, और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड आईआईटी बॉम्बे में कुछ था वो समथिंग। So it was tough that time. It हाँ, was not only common aptitude देयर वाज test. नो कॉमन, नहीं था, हर कॉलेज का अपना अपना होता था उस टाइम पे। Oh. So उस समय आपके साथ क्राउड कितना आता था एग्जाम के लिए और कितना नया था, कौन सी ईयर की बात है ये? दिस इज 1982। 82. So उस समय अवेयरनेस था क्या अबाउट आर्किटेक्चर एंड हमको ही नहीं था, तो हम अभी क्या, कोई मालूम ही नहीं था कौन आर्किटेक्चर फील्ड में है, क्या उस है। समय क्या कितने स्टूडेंट्स पर बैच आपके, और आपने चेंजेस अब किए मैं आपके बाद? Very few. नहीं, आई रिमेंबर जेजे का जब मैंने दिया था तब उस टाइम पे तो मुझे नहीं मालूम कितने बच्चे हैं, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि ऐसे हमारे उसमें 60-70 बच्चे थे हमारे स्टूडियो में, उनके स्टूडियो में होते थे एग्जाम, जो जेजे के स्टूडियो थे आर्किटेक्चर। तो अब जब मैं गया एज प्रेसिडेंट बनने के बाद में, तब मैंने देखा अच्छा ये हॉल में 60 लोग बैठे, ऐसे 5-6 हॉल थे जिसमें बच्चे टेस्ट हो रहा था, तो 300-400 बच्चे होंगे मेरे। और आप निकलते तक फुल 5 इयर्स का कोर्स करने के बाद तब तक कितनी कैपेसिटी हो गई थी मतलब आर्किटेक्ट्स की, स्टूडेंट्स की? आर्किटेक्चर स्टूडेंट नहीं, तब बहुत कम थे, 30-40 तो स्कूल्स थे पूरे कंट्री में। हम जब ग्रेजुएट हुए तो 35-36 स्कूल्स थे अक्रॉस द कंट्री, और हर की 40 के ऊपर में इनटेक होता नहीं था, तो 1200-1500 बहुत हो गया, तो 3-4 हज़ार बच्चे निकलते होंगे। अब तो खैर बहुत हो गए, बट मुझे नहीं लगता 30-30-40 स्टूडेंट्स भी आप पकड़ लो, 1600 बच्चे निकलते होंगे। So before IIA there was some other organization body जो something related to London bench. हाँ, वो कैसा So था कि that बॉम्बे, was with you, Bombay something. हाँ, बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स ऐसा कुछ था Correct. या But that was associated with जे स्कूल। क्लॉड बैटली वाज द हेड ऑफ द, correct. मतलब दिस इज हिस्ट्री टू अस History. आल्सो, हाँ हाँ. हमारे से भी बहुत पहले की बात है अच्छा, वो। okay. क्लॉड बैटली वाज द प्रेसिडेंट और समथिंग ऐसा, मुझे एग्जैक्टली हिस्ट्री नहीं मालूम। ही वाज एसोसिएटेड विद जेजे, ही वाज टीचिंग इन जेजे, तो वो जेजे में ही था, मतलब ऐसा। तो बस जेजे तो हम गए नहीं, मदर ने जाने नहीं दिया, जेजे बॉम्बे जाएगा बदनाम वो हो जाएगा, क्या बोलते, बिगड़ जाएगा बच्चा, और अकेला कैसे रहेगा बॉम्बे में, तो नागपुर में ट्राई कर। तो ऐसे नागपुर का तो बाद में हुआ टेस्ट, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि है ना, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस तो था नहीं। Correct. तो वहाँ इंटरव्यू में, आई डोंट नो, यू मस्ट नॉट हैव हर्ड ऑफ तुंगारे सर, प्रिंसिपल थे जेजे के फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही जस्ट पास्ड अवे लिटिल। एंड देशपांडे सर, अपने श्रीश देशपांडे यहाँ के थे, अब 2 ही कॉलेज थे, तो देशपांडे सर वहाँ जाते थे, तुंगारे साहब यहाँ आते थे। तो वहाँ पे तुंगारे साहब ने बोला कि तेरा तो हमने वेटिंग लिस्ट पे लगा दिया है, अभी क्या थोड़े 300 बच्चों को इंटरव्यू लेना 2 दिन में, तो मतलब आराम से वो भी मजे लेते थे। तो आई सेड कि सर ठीक है, फिर अच्छी बात है, मतलब आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि यार जेजे में नहीं हुआ। तो नहीं बोले, शिरीष बोल रहा है कि ये लड़का बड़ा टैलेंटेड है, इसको नागपुर ले, नागपुर गए, बॉम्बे क्यों आएगा, नागपुर में रखेंगे इसको, ऐसा शिरीष ने बोला। वो तुंगारे वो तो लिटिल अच्छे थे, मतलब वेरी गुड रैपो विद स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने वेटिंग पे रखा है, वहाँ नहीं मिला तो तेरे को यहाँ देंगे एडमिशन, दैट्स व्हाट प्रिंसिपल ऑफ जेजे टोल्ड मी। तो आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, आई वाज लुकिंग एक्साइटेडली टू गो टू बॉम्बे एंड घर से बाहर जाना. हाँ, मतलब घर से बाहर जाना भी, मतलब दैट वाज एट दैट एज रहता है ना, मतलब एट दैट एज। तो फिर नागपुर का टेस्ट दिया, तो वहाँ पे तुंगारे साहब थे, मतलब वो वहाँ से बॉम्बे से आए थे, और देशपांडे साहब थे, दोनों। हो तो गया था मेरा, आई वाज नॉट वेरी गुड विद द PCM, 75 कुछ थे मेरे टोटल एवरेज, बट आई वाज ओके ऑन द लिस्ट, 3 या 4 4th नंबर था मेरा। तो ये सेट कि हमको एक आया था प्लेन टेकिंग ऑफ का स्केच बनाना है, वो स्केच बनाना पड़ता था ना, प्लेन टेकिंग ऑफ ट्रेन एट अ रेलवे स्टेशन, ये टाइप के कुछ चलते थे, तो प्लेन टेकिंग ऑफ का आया था। तो ऐसे ठीक है, तो आई मेड अ प्लेन, आई मेड अ रनवे, ऐसा पूरा बड़ा पूरे ड्राइंग पे, और छोटा सा प्लेन ऊपर में, तो जो डिटेल ना दिखानी पड़े, जैसे मतलब स्केच का जैसे कंपोजिशन करके। तो देशपांडे सर सेट कि यह प्लेन दिख नहीं रहा इसमें, सर प्लेन टेकिंग ऑफ है, लैंडिंग होता तो मेरे पास आता, अभी टेकिंग ऑफ है। तो बोले अच्छा, दैट मेक्स सम सेंस। Oh my God. एंड देन एक ऐसा इंटीरियर दिया, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिया था इंटीरियर का, उसको कलर स्कीम, मतलब कलर करना था वाटर कलर से या पेंसिल कलर से। तो मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक यू विल रिकॉल, शी विल रिकॉल प्रॉब्ली, पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स के फैन आते थे, हाँ. है ना, उसके नीचे में प्लास्टिक यहाँ स्क्रू करते हैं ना उसको, करते थे, तो वहाँ एक प्लास्टिक का लाल रंग का लगा होता था एक कैप, हाँ कैप. तो वही लाल रंग का मैंने उतना ही किया था, वो मेरा पेपर खत्म करके आराम से बैठा था। ठीक है, तूने तो यार स्कीम ही नहीं दी, यहाँ पे कलर ही नहीं भरा, तो हाउ डू वी जज योर कलर सेंस? आई सेड पूरा व्हाइट है सर, टोटल व्हाइट है घर पूरा, तो ये लाल क्या है? तो आई सेड क्रॉम्पटन ग्रीव्स का वो जो रहता है वो है। अच्छा तो बट आई गॉट 40 out of 42. 40 was the weightage and I got 42 out of 45. So I got it here. So that's how I came into architecture. It was a fun journey. No, it was not fun. Wait, the tension में बैठा रहता था, मतलब अभी when you look back it becomes funny. But then don't you think that time it was destined you to be in Nagpur only? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब वो भी उस पर देशपांडे साहब उसके रिस्पॉन्सिबल है। याद है अपन गए थे, व्हेन आई वाज इन द US, तो वी केम बैक, शी आल्सो केम बैक, देयर वाज दिस बिग डायलेमा
कि कहाँ प्रैक्टिस करें, मतलब कहाँ सेटल हों, नागपुर में, बेंगलोर, बॉम्बे, 3 ऑप्शन थे शायद अपने पास में, अहमदाबाद अपने 3 ऑप्शन थे, बॉम्बे, बेंगलोर एंड नागपुर। तो हमने चलो यार देशपांडे सर के पास जाएंगे, पूछते हैं, मतलब ही वाज वेरी क्लोज टू मी, अभी स्टिल वेरी क्लोज टू मी। तो सर ने कहा कि देखो भाई तुम्हारा है, तुम देखो, मैं क्या बताऊँ, नेचुरली कौन बताएगा यार तुम, तुझे बेंगलोर चले जाओ, ऐसा थोड़ी कोई बोलता है। बट एनीवे वी वर लुकिंग फॉर सम एडवाइस, सो ही सेड यू डिसाइड व्हेन वी वर आउटसाइड द पोर्ट्स एंड वी वर लीविंग, ही सेड कि यू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी अ ड्रॉप इन द ओशन और यू वांट टू बी द ओशन योरसेल्फ। वाओ। तो हमने बोला ठीक है, ओशन ही ठीक है, ओशन ही बने, मतलब तो यहीं रह गए, फिर ऐसा हो गया तो यहीं सेटल हो गए। So that's so interesting. Correct. And how you find ma'am? First we asked ma'am how you came into the architecture field. That time, as of this time, I think most students are kind of confused what to do. We really don't know, and it all depends upon what your results come out to be. So I feel it kind of destiny now that when I look back, instead of those stories I look at, when I look back, it's a different way I look at things. कि किस तरह से दरवाजे बंद होते गए और कुछ दरवाजे खुलते गए. Now you think that that's how it worked. At that time it's like, hey, what's going on? समझता ही नहीं था कुछ, समझता ही नहीं था ना कि भाई 12th में इतनी पढ़ाई करके गए, फिर एकदम ब्लैंक हो गए. 2 of my papers which were so good, सारा आ रहा था मगर I couldn't answer. So automatically the average dropped. So then you cannot get into engineering college, which is where most of us were headed to. I was better off with math, science, physics, chemistry. सारा मेरे को अच्छे से आता था. Even biology, I was good. I wouldn't say like him. I was good. I was praying since morning कि मैं blank ना हो जाऊँ आप लोगों के सामने. So what make you blank that? I went blank in 2 of the papers just because you are really you everything on the paper and then suddenly something goes fat. अब समझ में आता है कि वहाँ जाना ही नहीं था, जाने देना ही नहीं था, नहीं तो अच्छा खासा स्कोर मिलके I would have moved to engineering पक्के से. तो फिर वो गए इधर उधर ढूंढते हुए, भाई कराड़ में एडमिशन मिलेगी, फिर इनके जैसे क्यों जाएंगे कराड़, यहीं पे देख लो क्यों जाना है, ऐसा द होल आइडिया. सो देन वी सर्च हियर, टुक एडमिशन इन साइंस कॉलेज, वो नहीं जमा स्टैटिस्टिक्स. VNIT में फिर यही सेम, मैंने भी साइंस में लिया था, स्टैटिस्टिक्स में लिया था मैंने एडमिशन, we इंस्टीट्यूट all ऑफ have the साइंस में. same path. एक महीना आई डिड समथिंग ऐसा. Yeah, even I did one month of statistics. तो वो जो बोलते हैं महाभारत में कृष्ण ने सब चीज रचाई थी. Now when I see that's how it is. Right? कि आपकी होना ही वजह नहीं से था ना, तो दरवाजे बंद ही होते गए. बंद ही होते गए. भले ही हम ब्लैंक हो जाए, कुछ हो जाए, मगर एग्रीगेट कुछ इस तरह से आया कि इंजीनियरिंग तो लेने नहीं वाला था. आर्किटेक्चर के लिए बहुत अच्छा था वो एग्रीगेट, इसलिए आर्किटेक्चर में फट से हो पाया. इसलिए फिर वो पेपर में ब्लैंक भी Yeah, हुए. yeah, and the only thing I liked about Institute of Science was the building itself. अब सिर्फ बिल्डिंग पसंद है इसलिए तो नहीं रहेगा ना कोई वहाँ पे, but I enjoyed that 1 month only, hanging out in the arches, looking out at the gardens, all of those things. वो कहीं दिल के अंदर रहता है वो. एंड में था, किसी ने बोला वहाँ VRC में टेस्ट हो रही है आर्किटेक्चर की, तो हम वहाँ से भागे क्योंकि यहाँ तो रहना ही नहीं था. और फिर वही वैसे ही टेस्ट हमारी भी थी. There's a memory drawing and like he had a plane taking off, we had a woman working in the kitchen, a lady working in the kitchen. तो हम लोग भी डिकोले के क्लास में गए थे और उन्होंने हमको रटवा लिया था कि भाई ये चीज़ें होती हैं, सिल हाइट ये होती है, लिंटल हाइट ये होती है, प्लिंथ हाइट ये होती है. सो सब रटाया था पूरा. एंड देन दिस लेडी इन द किचन. सो नाउ व्हाट टू डू, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर सच अ रिबेल. लेडी इन द किचन सबसे पहले हमको पसंद नहीं आया. व्हाई लेडी इन द किचन? आई एम नॉट अ लेडी who's going to work in the kitchen. हालांकि जिंदगी भर हमने काफी काम किया है किचन में और आज भी करते आए हैं, और उस समय लेडी इन द किचन नहीं जमा. तो मैंने एक लेडी का बैक व्यू बताया क्योंकि हमको आंखें बनाना नहीं आता था, और इतनी बड़ी चुटिया. The choti was really big. So she was a lady I didn't identify with because my hair has been like this ever since. So that was that kind of thing. मगर ओटे की हाइट बराबर दिखा दी क्योंकि हम रटे हुए थे ना कि ओटा इतना ही होता है, 750 mm, and that's how it should be. So until what point of the lady would it come? So this was a question asked. We had an interview after that. Okay, so this was asked. We used to have interviews. We used to have interviews. So they used to ask you about what you did. So that was a great time to get across and talk. Then there was yet another thing, like he said, क्या था आपका वो कलर देना ना, हमको भी वही टेस्ट थी. I was just a year back ना, तो same kind of thing. So it was a veranda and I looked out into the garden. तो अच्छी खासी चीजें ग्रीन करा दी, bricks भी ग्रीन करा दिए. तो सवाल ये था इंटरव्यू में कि why is everything green? So everything has to be with the smart. nature. Actually speaking, it's right or wrong doesn't matter. What matters is how quick you are and how convinced you are in answering. Like you could have heard him. It was basically a convincing and a statement that you can make. And why Deshpande sir, he's very impressive if you've seen him. Have you seen him? Yeah, I've seen. Yeah. So ऐसा कोई डर वर तो नहीं लगा, बस बैठे ठोकते गए जो भी. So confidently, so I was second on the list. One because my PCM was quite high, not as high as the first one. She was in her 90s. She left for medicine, so I was the first one. Oh, fantastic. So then someone gives you so much respect. So चलो यार आर्किटेक्चर ही करते हैं, कुछ अच्छा कर पा मैं रहे तो हैं. गया ही नहीं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. आई डिडंट गो टू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. You didn't? तो मैथमेटिक्स के जो लैब वाला था उसको हमने पटा लिए थे. उसको हम एक खर्रा देते थे शाम को, बोले तेरी अटेंडेंस सब हो जाएगी, बोले भैया तुमको गए नहीं.
So we can conclude over here at this age that you both were very smart. No, not really. No, not No, we were really. the dumbest of. अभी जब when you look back at your photographs and you realize कि यार ये हम क्या थे मतलब है ना. No, the kids today are, you can't beat them. The generation has become smarter. Correct. That happens with us as well. Then how you met ma'am? मैं कहानी ऐसी है कि हम हिस्लप में थे. मतलब आप इनको मिले कि ये आपको मिले? नहीं नहीं, हम. वो वीएनआईटी में एक ही कॉरिडोर है, बस 5 ऐसे स्टूडियो है, एक कॉरिडोर है. No, I had seen her earlier. I was in Hislop and she was also in Hislop, 1 year junior. Yeah. Oh. हम 12th में थे, ये 11th में थी. At that time we didn't know each other. I knew क्योंकि her. हम आते नहीं थे, हम हम आते थे, हम रोज कभी- जाते थे कॉलेज. See, हिस्लप हम कभी गए नहीं. ये थे. 2 काम के लिए जाते थे, हिस्लप गए, वहाँ से हम जितनी पहली मूवी आती थी पहला शो देखते थे हम लोग. सब लोग 5-6 लोग थे हमारे ग्रुप में. फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमारा देखने का काम, बड़ी कितनी लाइन लगे कुछ भी हो जाए, जैसे भी मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे हम. कभी कॉलेज में तो रहे नहीं. तो 11th के बाद में सबने बोला भाई ट्यूशन व्यूशन लगानी पड़ेगी, नहीं तो फेल हो जाएगा भाई तू. तो फिर हमने ऐसी कोई नॉमिनल ट्यूशन लगा ली कहीं पे धर्मपेट में कॉफ़ी हाउस के पास में. तो आई यूज टू गो देयर. और जब कॉलेज में रहते थे लड़कियाँ डिस्कस करते थे कौन है क्या है. तो शी वॉज अ क्वाइट अ रेज इन द कॉलेज एट दैट टाइम. काफ़ी मतलब मोबाइल नहीं, कुछ नहीं ना, जो है तो कुछ काम ही नहीं था ना. बैठे कॉरिडोर में क्या करेगा आदमी, लड़कियां देख रही हैं, इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, अब डिबेट हो रही है, ये अच्छी दिखती है वो अच्छी दिखती है ना. ऑनेस्टली तो देयर वाज अ गर्ल दैट आई यूज्ड टू लाइक. ऐसे कभी कुछ हो नहीं है, अच्छी लगती है जैसे ये ज़्यादा अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, ऐसा ऐसा लगता है ना बच्चे वो एज में. तो इसके बीच में और एक और लड़की थी, उसका नाम नहीं लेता मैं अभी. दोनों के बीच में डिबेट होती थी, मतलब ये अच्छी है कि ये अच्छी है, हमारे बीच में, हमारे आपके दोस्तों बीच के में. बीच में डिबेट होती थी. मैम के लिए भी ये टॉपिक नया दैट्स है. क्रेजी. हाँ तो मतलब आई वॉज एंटी हर. ये कुछ भी है कि बाल है क्या, ये ऐसी है क्या दिखती है, हाइट है क्या वगैरह ऐसे टाइप का. नहीं ऑनेस्टली मतलब. एंड द अदर गर्ल आई यूज्ड टू मतलब फेवर इसके इन. लंबे बाल होंगे नहीं, जैसे मैंने ड्रॉ किया. हाँ इतना याद नहीं है मेरे को. चोटी नहीं थी फिर इतना मालूम है. तो ये हो गया. फिर हम हिस्लप से निकल गए. आई वेंट टू आर्किटेक्चर. देन वन डे वी यूज्ड टू साइकिल डाउन. उस टाइम में तो लूना वूना होती थी बस, दैट्स द ओनली थिंग. तो वी यूज्ड टू साइकिल डाउन. सो मी एंड माई फ्रेंड विक्रम, ही इज नो मोर नाउ. सो वी वर साइकिलिंग डाउन फ्रॉम द गेट एंड वी सडनली सी हर साइकिलिंग देयर. तो बोला अरे ये अच्छा आ गई यहाँ पे ऐसा. फिर देन आई सॉ एंटरिंग आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट. तो बोला चलो ठीक है, कोई तो मतलब आया ये टाइप का मतलब. कि वीएनआईटी में तो जाती नहीं थे ना लड़कियां, थे वेरी फ्यू गर्ल्स इन वीएनआईटी. और हमारे बैच में सारे आर्किटेक्चर में, सो I दैट think हमारी some ragging नहीं हुई. 8% दैट डिपार्टमेंट वाज द एनवी ऑफ ऑल अदर And डिपार्टमेंट्स. my batch had about 12 girls out of 30, 32. So there was a maximum concentration of girls in the entire college. तो हमारी कभी रैगिंग ही नहीं हुई, क्योंकि जितने सीनियर से सब हमको पटाते थे यार तू चल तेरे साथ में रहूँगा, यहाँ बैठ जाऊँगा, इससे मिला दे उससे मिला दे टाइप का. तो रैगिंग ही नहीं हुई हमारी कभी. तो व्हेन शी केम देन आई वाज ऑलरेडी अ सीनियर. सो है ना अपना एकेडमिक डिस्कशन होता था बहुत, ये डिज़ाइन में हेल्प, ये वो हेल्प ऐसा They were very करके. nutty actually. I mean, there were so many things in life to do which I see the kids today doing. We did nothing of that. I mean, I feel यार कभी वापस चले जाए ना तो बहुत सारी बहुत चीजें कुछ और कर करेंगे. सकते हैं. डिस्कसिंग व्हाट छज्जे कैसे अंदर दिखने चाहिए, कैसे गंदे छज्जे दिखते हैं ना, कैसे अंदर करेंगे. कहाँ कुछ भी नहीं था वीएनआईटी में, कहाँ पे खड़े रहते थे, साइकिल जहाँ पार्क होती थी पार्किंग वहाँ बैठ लॉट के बात में करते थे. डिस्कशन ये होता था कि चार्ल्स कोरिया आपने छज्जे कैसे छुपाते हैं. हाँ तो ये टाइप का एकेडमिक डिस्कशन, और हम ज्ञान देते थे Talk बहुत. about. आई यूज्ड टू, जैसे अभी भी ज्ञान देते हो तो तब भी ज्ञान देता था. हाँ, बस ज्ञान ही काफ़ी देते ज्ञान थे. देते थे. और फिर हेल्प भी करता था कुछ ऐसी जो भी But वॉटेवर. he was a universal helper. जिसको भी पर्सपेक्टिव नहीं आया बस हम चले गए पेंसिल लेके. जो आई यूज्ड टू, अभी आप लोग जो बनाते हो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर से, आई यूज्ड टू मेक इट विद हैंड एंड रेंडर इट पूरा मतलब वेरी क्विकली. ऐसा हर बैच में कोई एक रहता ही है नहीं. VNIT at that time had a legacy of students starting from I think Rowley's batch. And we had वेरी गुड एट हैंड. very good at hand. I mean, that I time was- somehow they related that if you're good at hand, you might land up in architecture. I was very good at hand, and I will not compare myself with anyone because उसमें एक्सेप्शनल not मॉडल्स. as good, but एक्सेप्शनल मॉडल. but in school I would always be the topper where the drawing was concerned. So when I went into architecture, people thought that's where she had to go anyways. But that's really not architecture as we understand it today. But उस समय वो heroes रहते थे. हाँ ये क्योंकि बिल्डिंग computers कंस्ट्रक्शन नहीं का रहते पेपर थे है ना. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वो पेपर होता है हाँ. एग्जामिनेशन 3 घंटे का. आई यूज्ड टू फिनिश 1.5-2 घंटे में फिनिश. आई नेवर यूज अ टी स्केल, नेवर यूज अ सेट स्क्वायर, बिकॉज वो मेरी लाइन इतनी परफेक्ट एंड वो उसका स्केल सब पूरी. अगर 1:10 में बनाना तो आई यूज्ड टू मेक 1:10 विदाउट अ टी स्केल एंड अ सेट स्क्वायर. No, that was not important. He used to do that. उसके बाद हाफ टाइम में जब पेपर खत्म होता दूसरों को जाके टेंशन देना. हाँ अरे घूमने का ऐसा निकल वगैरह गए. जाके टॉयलेट जाके आ रहा हूँ, फिर ये कर रहा हूँ, तो लोग बोल रहे हैं मतलब साला लोगों मेरा टेंशन complete कि नहीं मेरा हो नहीं हो रहा है और इनका हो गया. रहा. तो उसी में आदमी आधा जाता है आधा ना, जाता ओपोनेंट आता है, उसी में चला जाता हूँ. तो कभी ऐसा डर नहीं लगा कि विदाउट सेट स्क्वायर और टी स्केल मैंने बनाया है तो गलत ना हो जाए? नो आप नाप के देख लो, आप दिख चेक जाता कर ना, लो, इट्स अ रिजल्ट देयर चेक कर ओनली. लो. इट यूज्ड टू But it is परफेक्ट 90 something I learned डिग्रीज. from him. I don't do construction drawings the way he does, but design में I stopped drafting. हाथ से ही चलता था फिर. एक
हल्की लाइन ड्राइंग बनी कि बाद में हम फ्री हैंड चलाते थे, इसलिए डिजाइन कंप्लीट होता था. वी यूज्ड टू हैव क्वेश्चन, वी हैड एग्जाम्स फॉर 3 days 4 days 5 days ऐसे सीनियर क्लासेस में, तो 4 दिन ऐसे पीरियड पेपर चलते थे, 6 घंटे पर डे. कैसे कंप्लीट होने वाला था अनलेस एंड अंटिल वी वर जस्ट हमारे तक वो 2 दिन में आ गया था. अभी बीच में कोई इंटरव्यू था शायद, व्हेन आई वाज अ प्रेसिडेंट कोई कॉलेज का, दे हैड मेड प्रेजेंटेशन वगैरह, दे हैड इंटरव्यू जस्ट लाइक यू आर इंटरव्यूइंग ना, तो ऑल द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद आवर लाइफ ने, वो रमन जोत ने जो किया था उसमें देश पांडे साहब का भी इंटरव्यू लिया था. तो अभी वो जरा फॉरगेटफुल हो गए हैं, थोड़ा सा उनको डिमेंशिया हो गया है, तो कहीं कहीं इधर की बात उधर. बट ही सेड कि हमको पूरे कॉलेज को मालूम था, फैकल्टी को, कि दीज टू आर गोइंग अराउंड. तो हमको ही नहीं मालूम था कि वी आर गोइंग अराउंड, बट इधर हमको पहले से ही मालूम था कि दे आर गोइंग अराउंड एंड दे गोइंग टू गेट मैरिड. How did Deshpande remember this? उसके इंटरव्यू में है ना रमन जोत के. I think he just forgets something just crops up and then it's hardly anything so Maybe his consequential. intuitions work. Maybe his intuitions work. Yeah, maybe, and I think he's forgetting things, so he suddenly remembers something that. So finally, when you met, I used to meet every day. no, but almost. when you decided to be together, I mean, नहीं, मुझे नहीं मालूम था ना कि एकदम मतलब जैसे कि वेदर शी इज इंटरेस्टेड इन मी और नॉट. लगता तो था ऐसा कि भाई इतनी बात कर रही है अपन हम सबसे डिस्कस कहा करते थे ना, बच्चे ही कितने थे यार वहाँ पे. तो ऐसा मुझे नहीं मालूम था. बट वी हैड गॉन टू नासा, हैदराबाद नासा. Yeah, we'd gone to Hyderabad. Hyderabad, We used to go to NASA. NASA उस समय, you know what NASA is, I ना? know. तो नासा में जाना ही गए थे जाना हम लोग था. हैदराबाद. तो शी हैड आल्सो the कम. most happiest. हाँ, आई day. अटेंडेड ऑल द 5. तो थर्ड ईयर नासा में हम हैदराबाद में JNTU जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ रुके थे. तो बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में ऐसी, आजकल तो नहीं रही, उस टाइम पे वो कोलैप्सिबल गेट थी ऐसी, एंड ठंड थी काफी. आई हैड अ हाउस देयर, सो वी वर स्टेइंग देयर इन द हाउस इन हैदराबाद. तो ऑल ऑफ अस वर स्टेइंग इन द हाउस. ये लोग हॉस्टल में रुके थे वहीं पे. तो दैट नाइट इट गॉट लेट, ऐसा समथिंग, ठंड थी काफी. तो आई हैड नो स्वेटर और नो शॉल और समथिंग. तो शी गेव हर शॉल टू मी. Oh, did I? हाँ. I don't तो So it's a filmy story. हाँ, तो देन शी पट गई बॉस, पट गई तेरे से, अभी तो फाइनल है बोले यार. तो अभी बोली दे बोले जाके. नहीं, उनके कैंप में देखो कितनी तो- कितनी बातें होती. और फिर मी एंड विक्रम एंड राउत, संजीव राउत सर, वी वेंट इनटू द लाइब्रेरी. शी हैड अ वेरी गुड फ्रेंड सुष्मिता. तो दे वर सिटिंग इन द लाइब्रेरी. तो द मोमेंट आई एंटर्ड, तो उसने ऐसा मारा इसको. तो विक्रम बोलता बहुत सेट है बोले. अभी तो बिल्कुल सेकंड है बोले, पूरा सेट है Look बोले. at that. Does it exist today in today's I college? swear. There Sure was it no does. phones, there was no WhatsApp, there was nothing at that time. कुछ So भी I नहीं said, रहता है चलो ना, तब ये सब So I चीजें was- रहती है, तो बारी बारी So I was emboldened कि अभी कहीं बोल देंगे. पर हमने कहाँ प्रपोज किया ना, RTO? RTO में लाइसेंस बनाने गए थे हम, ड्राइविंग लाइसेंस. You didn't have so many cafes those days, कोई right? कैफे नहीं था, नैवेद्य में एक रेस्टोरेंट था सिर्फ. Correct. हाँ, वहाँ जाके बैठते थे. मोती महल था एक, अब सदर वाला भैया, तो वहाँ बैठते थे हम लोग जाके कभी कभी. तो RTO में हम लोग गए थे, वहाँ प्रपोज किया मैंने. फाइनल ईयर में, आई वाज इन फाइनल ईयर. And then you both went to US together. No, we went one after the other. I I was here came in my back and final year. then she went. So we were not there together in the US. And till now you are together. From हाँ, मतलब अभी तो that ऑप्शन era नहीं है ना to कोई. this era. अभी And तो there option must नहीं be many क्या? ups and downs in your life and your career and everything, and must be very, very challenging, नहीं, right? मतलब अगर इंटरव्यू के लिए बोलना है तो आई कैन से कि बड़ा बड़ा चैलेंजिंग लाइफ रही है. और मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल बट मैं गरीबी से ये निकला जानना हूँ. चाहती हूँ कि सर जब आप लोग सीख रहे थे, या हम भी थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े हैं, शायद इतना नहीं जितना आप लोग पढ़े, बट वी टॉक अबाउट स्टाइल्स, we talk about how the style changes or the design concept change in geographical aspects. So हमारे यहाँ का डिजाइन शायद बाहर नहीं चलेगा. And when I saw you are working on a very traditional and vernacular architecture, correct? If I'm not wrong, yeah. And at the same time, parallel mode, there are people working in a very different mode, getting Western into Indian, going things on a industrialization, that era and the modern era. And then things were mixing up together. So it must be very difficult for you to stick on one style, and must Not be challenging as well. See, I mean, I'll tell. You want to say something? I think we did start like that only. We also started because once you're back from the US, you're so influenced. That time deconstructivism was at its height, and Zaha Hadid was still not on the picture because she was just a little senior to us, and she was also probably setting up her practice. But there were these other guys, Peter Eisenman थे और वो सब था. तो Peter पहले Eisenman, projects Frank ऐसे ही Gehry. चलते थे. Frank Gehry. Frank Gehry, Michael Graves. Michael Graves we're very impressed with because he was American plus he was very modern. Actually, to be honest, we were very interested into what is Indian. I was fascinated by Indian history, historic architecture. And I was even fourth year design assignments, thesis, all were, on that same line. When I went to the US, we also did work like Hassan Fatih in Egypt, who revived traditional construction techniques, and we were very impressed with that. So that was there in the grains. But when you come back and when you start your establishing your practice, तो कौन बोलेगा ना अभी पहला project
पे खड़ा नहीं हुआ है तो कौन बोलेगा वर्नाकुलर आर्किटेक्चर करो. So we did something which I think every young architect should understand, that you have to build your brand. ना, whether it is fake or genuine, time will tell and your clients will tell, but you have to build up on your brand. ऐसा पूरा style है ना, you have to build that. Otherwise कोई नहीं आएगा नहीं आपके पास. जानता. कोई जानता भी नहीं है. वो क्यों आएगा यहाँ पे? अगर 10 लाख भी उसको खर्चा करना है, आप 10 रुपए का पेन लेने जाओगे, उस पर स्क्रैच रहेगा तो नहीं लोगे आप उसको. And he is now interesting 10 lakhs to do a room, तो वो क्यों आएगा आपके पास? So that building of a brand is very important. So what we did was we started doing interiors. उसमें 2-3 वजह थी उसकी. एक तो ये कि पैसा जल्दी आएगा, टर्नओवर फास्ट होता है इंटीरियर्स का कंपेयर टू आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स. 2 साल लगते हैं मिनिमम आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को. So that was the idea, and then we were not very confident. Our education system still at that time also we were not very confident to experiment your ideas and your design issues with a built project, with an architectural project. So we said चलो अपने इंटीरियर पे, and then we were doing, I was doing interiors in the US for a year. We were only doing interiors फॉर्म में, तो वो भी था बैकग्राउंड, तो we started doing interiors. उससे we were able to establish quicker and fast. यूएस में जो भी आपका एक्सपीरियंस था वो और इंडिया के डिजाइनिंग पार्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, राइट? वहाँ के डिजाइनिंग में, यहाँ के डिजाइनिंग में, यहाँ के प्रैक्टिकल इश्यूज, वहाँ के प्रैक्टिकल इश्यूज. सो हाउ यू हैव टर्न्ड योरसेल्फ फ्रॉम दैट टू Totally different. That is where the challenge lies. Actually speaking, जो difficult time होता है ना वो होता है. You have to respond to the clients. You got to stand out in the market. I remember earliest projects were quite deconstructivist. AJ Ceramic का बनाया था. पूरा तोड़-फोड़ करके आधे कॉलम टूटे हुए हैं. फिर देन वो माइक्रॉन को भी गॉट अ नेशनल अवार्ड आल्सो. वो भी ऐसे That पूरा also had प्लास्टर Roman टूटा-फटा. ruins, columns फटे-टूटे, उसमें कंप्यूटर्स डिस्प्ले हो रहे, वहाँ से That चालू was हुई ना शुरुआत. 95-96 में हमने शुरू किया था. वहाँ पे हमने वो होर्डिंग भी लगाई थी, वो भी ऐसी टूटी-फूटी थी, पप्पू भैया ने बनाई थी. That's since that time I know him. So basically establishing a brand was very critical. तो फिर क्या करो, ये सब करो, फिर चोटी बढ़ा लो, फिर दाढ़ी रख लो, है ना. आज जब सोशल मीडिया ब्रांडिंग के पीछे है, you are back at that time establishing yourself. We didn't know this is called branding. Now we are telling you this is called branding. But at that time we didn't know. The only thing that we knew was कि अपने को अपना establish करना है, मतलब. And that establishment has to be something where a person will. Why you are a consultant? तो आप consultant के पास में जाओगे because आपको वो चीज़ नहीं आती जो consultant को आती है. तो आप ये दिखाओगे कैसे? अभी नए जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि हाउ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड, एंड इतने सारे चैलेंजेस है, कंपटीशन इतनी ज्यादा है, तो व्हाट मैसेज विल यू गिव टू Patience. Patience, actually. Yes. Patience is the only I way. think we have run out of patience because we think everything just works so fast and everything is working good for somebody else because everyone portrays that they are successful, they are the ones who are up and about. अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता रहता, but everybody feels other one is doing good. मेरा क्यों नहीं हो रहा? करेक्ट. So that's मेरा भी where- टाइम आएगा बोलते हैं ना, वैसा है भी. यू हैव टू हैव पेशेंस. एंड देन सबसे क्रिटिकल जो बात होती है वो ये है कि अपना जो प्रोफेशन है, आर्किटेक्चर है, डिजाइनिंग है, या जो भी रिलेटेड क्रिएटिव है, सुबोध का प्रोफेशन, जितने भी क्रिएटिव प्रोफेशंस हैं, ये मैराथन रेस है. दिस इज नॉट अ 100-meter डैश. यू विल नो द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, बट यू विल नो द स्लोएस्ट मैन ऑन अर्थ. यू विल नेवर नो. ना उसका कोई ग्लैमर है ना. आप बताओ मेरे को कौन है मैराथन ओलंपिक विनर, नहीं बताओगे. फास्टेस्ट मैन का आप नाम बता दोगे, मैन या वुमेन, है ना, बिकॉज ग्लैमर है उसमें. तो हमारा जो प्रोफेशन है ये है स्टेडी, स्टेमिना एंड स्लोली चलने का. आप जितना स्टेडी रहोगे, जैसे मैराथन वाला पहले ना बहुत ही ऐसी बिल्कुल ही चलेगा लिटरली, मतलब यू विल नॉट रन बिकॉज ही इज प्रिजर्विंग स्टेमिना. एंड देन जब टाइम आता है देन ही विल टेक दैट स्प्रिंट. आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, डिजाइनिंग प्रोफेशन इज एग्जैक्टली लाइक दैट. एंड ये चीज आज की जनरेशन को आज को मैंने प्रैक्टिस करने से पहले तो पहले चालू हो मतलब जाता चाहिए है. ना, मतलब ऐसा. So वो जो 30 सेकंड का रील होता है ना, इट्स लाइक 30 तो आजकल 8 सेकंड का हो गया. हाँ, 8-11 का हो गया. उस मोड पे आ गया है कि no one has patience. Patience. Everyone has to go ahead and they just want to earn money, but they don't want to struggle, right? This is the phase we are, chasing in every field. So as you are saying, your profession, rather any profession requires lots of patience. So that patience with your own drawing, with your own brand, it will take some time. But for this generation, it is थोड़ा सा very difficult है. So being into college, have you ever, what are your strategies to tell these things to the new generation or to the students? No, before that I'll complete the answer पहले वाले क्वेश्चन का. कि देन जब हम लोग का नाम स्टैब्लिश हो गया, लोग जानने लगे, थोड़े बहुत पैसे आने लगे, देन वी स्टार्टेड डूइंग आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स. एंड वो आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में देन वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग इनटू आवर फिलोसफी. क्योंकि थोड़ा बहुत आपका मतलब नोन है ना. यू विल नीड अ शाहरुख खान टू टेल यू व्हाट शैम्पू टू यूज, और दीपिका पादुकोण टू से ये सोप इस्तेमाल करो. सो यू नीड अ हबीब खान और एस्टेब्लिश्ड आर्किटेक्ट टू टेल यू यार ये सबसे बढ़िया है, मतलब ये करो. तो देन लोग सुनेंगे ना. सो इट्स अ इन्वर्टेड पिरामिड. जो ऊपर का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है आपकी सोसाइटी का, वो अगर आपका फिलोसफी एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करेगा तो बाकी सब करेंगे। आज वो अंबानी की शादी के पीछे लोग पागल होकर दीवाने हो जा रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे। वाई? हमारी शादी पे तो कोई दीवाना नहीं हुआ है ना। ये सोसाइटी का वो है, क्या कहते हैं, मेंटालिटी एंड थॉट प्रोसेस है। तो अगर आप, तो देन वी ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ दी, एंड दैट्स हाउ इट गॉट एस्टैब्लिश्ड। या यू आर सेइंग वेरी डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट नहीं है अगर आप सही लोगों को पकड़ोगे तो। Also, I feel because we belong to maybe a generation that we spent our life, our childhood in places which were traditional. That is another difference that has come about. Now you got to talk in terms of great grandmother's house. How many people have really been there, lived there? We actually lived our childhoods in those houses. So we know what those houses mean. The quality of light and the ambience inside and the family spaces and the materials. All of that was somewhere. And then when you look at this modern architecture, you wonder why we are the same Indians and why we're living in these houses. How is it getting friendlier? US से तो बहुत far cry है. India has nothing to do with the West. At that time more so. अभी तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं. But that kind of an architecture is so alien. It seemed like we were just being fashionable for what reason? It's architecture. It can't be fashionable. So always says कि history repeat होती है. So coming future में फिर से वो traditionality आने के chances या ऐसा कुछ. It is moving such a rapid speed. I don't. So I will. It was very challenging था हमारा generation, है ना. So it was fortunate also, we can say. We are the ones at our, just youth, when we were just beginning, computers came in, फिर printers आए, फिर email, internet आया, फिर social media आया. So we have, risen to all these challenges that, came. And with every invention, like we are now at the AI के कगार पे खड़े हैं. तो हम सोच रहे क्या होगा, AI हमारा प्रोफेशन ले लेगा, खत्म होगा. कुछ नहीं होगा. कंप्यूटर आया तो कह रहे हैं अब तो आर्किटेक्ट की क्या जरूरत है. You can't take कुछ नहीं हुआ. anyone's brain, right? Your style. So Every person is different. So we have seen all that transition. आप लोग जब पैदा हुए, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा शायद ना. Right, yeah. ईमेल, इंटरनेट एग्जिस्ट करता होगा. हम लोग के टाइम पे तो सामने हमको समझता नहीं था ईमेल कैसे भेजेंगे यार. तो हम क्या करते, ईमेल भेज के, अब देख यार तेरे को ईमेल भेजी, तू पढ़ लेना वगैरह टाइप ऐसा होता. तो वो चैलेंजेस हुए. तो वी आर नाउ वेल एडेप्ट टू दैट. वो आजकल आपको सब चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड. आपको नहीं, मतलब ये जनरेशन को पूरी टेकन फॉर ग्रांटेड मिली है. We'll end up with one last question. So, few books I have read. Some way I relate your style or philosophy or the way you practice was, I found one book called Punjabi Baroque. यहाँ गौतम भाटिया की. Gautam Bhatia, architect Gautam Bhatia. And somewhere I feel like कि ये ना style mixing and वो जो उनकी जो thoughts है, जैसे उनको नहीं digest हो रहा है, वैसे कहीं वो category में आप लोग भी आते हो. I'm right? And somewhere even I thought on the same line कि अभी इतना सब कुछ change होता जा रहा है. Everything यहाँ से भी सोचने जाए तो वहाँ पे यूरोपियन का कहीं से तो भी अमेरिकन भी आ जाता है, कहीं से तो बाकू और उस साइड का आ जाता है, इस्लामिक कल्चर थोड़ा मिक्स हो जाता है. It's like confusing where the design is going altogether. What do you say about this? We can keep design eclectic. We can keep it as a response to the conditions that we have at hand. And let's all design. You can take influences from anywhere. Today, Moroccan can work very well for us in terms of colors, in terms of the patterns. It's just that how much does the client like? वो भी तो एक बहुत बड़ा element है ना. I'm not designing for myself. There's a whole person standing in front, a whole family standing in front, or maybe an organization standing who's going to tell me what to do, which direction to take. But I think you should be free to move across all the styles that you want while keeping. But in one house. मैं एक आपको एग्जाम्पल इसको I'll try to put it in the perspective, social perspective. एक वो है ना neo rich and जो who are rich by birth, खानदानी रईस. हाँ, खानदानी रईस. और है ना नए रईस. तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है. तो ये जो neo rich सोसाइटी है, they would want to, एक घर बनाता है आदमी, लाइफ टाइम में शायद एक ही बनाता है, फिर नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा. तो वो दे चाहते हैं वो कि they want that everything should be incorporated. That is what Punjabi Baroque is all about. Yeah. है ना. वो सब आपका रेनेसांस भी है और आपका ये भी है, इंडियन भी है, सब है. मतलब दैट्स अ न्यू रिच मेंटालिटी, है ना. दैट्स अ न्यू रिच मेंटालिटी व्हिच हैज कम इन. सेकेंडली, और जो खानदानी रईस जिनको बोलते हैं, जिनके पास पैसे हैं ऑलरेडी, या उन्होंने देखी भी है दौलत, शोहरत, ये सब देखा हुआ, उनका थोड़ा सा टेस्ट रिफाइन हो चुका है बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस दैट सिंस जनरेशंस. तो ये सोसाइटी का जो न्यू रिच सोसाइटी आई जब इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद में ये सब पंजाबी बरोक वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो आया है उसमें. सेकेंडली, इफ यू सी इंडिया, इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्ट, क्राफ्ट, हमारी सबसे बड़ी खासियत जो थी या है पूरे वर्ल्ड में, आप कार्विंग्स देख लो, आप कोई डिटेलिंग देख लो, आपको लगा क्या बढ़िया डिटेलिंग की है ना, क्या वेरी नाइस डिटेल पूरा किया हुआ है. बट एक्चुअली आप उसको गौर से देखो, उसको लुक एट इन डिटेल. एवरी पीस इज अ इंडिपेंडेंट पीस. बिकॉज जो फ्रीडम दी जाती थी क्राफ्ट्समैन को, हमारे विद इन वन फ्रेमवर्क आदमी काम करता था. जैसे हम एक फैमिली हैं, हम एक कार्विंग कर रहे हैं, आपको फ्रीडम थी, आपको सबको फ्रीडम थी अपना अपना करने की, और क्या करना है ये गाइडलाइन थी. बट हमने कभी आपको नहीं बोला कि ऐसा ही कर भाई तू, जैसा मैं बना रहा हूँ उसकी कार्बन कॉपी तूने बनानी. आप जाके देखना, फतेहपुर सीकरी देख लो, ताजमहल देख लो, कोई मंदिर देख लो, आप उसमें
आप कार्विंग देखो, कितने पैनल हैं जाली के, दिखते सब एक जैसी जाली है पूरी। फतेहपुर सीकरी आप जाओ, ताजमहल की जाली देखो, दिखती सब एक है, पर हर पैनल इंडिपेंडेंट है। कोई कार्विंग That देख was the लो। role of the Sthapati at that time. It was very mathematical. He would create a framework and then he would say, go ahead. You're a designer yourself at heart because that creativity can't be curbed. So just go ahead within this framework. हाँ, तो ब्रिंगिंग द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर टॉकिंग ऑफ, तो ये जो फ्रीडम थी ना विद इन अ फ्रेमवर्क इज वेरी क्रिटिकल फॉर एन आर्किटेक्ट टू अंडरस्टैंड। तो आपका फ्रेमवर्क सेम होना चाहिए एंड देन आपकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, आपको क्या करना है आपके उसमें इन अ प्रोजेक्ट। तो जो आर्किटेक्ट ये नहीं समझता, जिसको ये सेंसिटिविटी नहीं है, वो पंजाबी बरोक, ही लैंड्स अप बीइंग अ पंजाबी बरोक आर्किटेक्ट। तो वो फ्रेमवर्क समझना इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू सी आवर प्रोजेक्ट्स यू विल फाइंड दैट वो फ्रेमवर्क को समझा हुआ है। इफ यू सी जेडी, इफ यू सी पीएल, जो भी हमारे कॉलेज आप देखोगे उसमें, तो दैट फ्रेमवर्क इज important, so that architect has to understand that framework or that freedom of expression within that framework. So ये thought process अगर सब में रहेगा तो वो उस टाइप की बिल्डिंग्स या उस टाइप का आर्किटेक्चर प्रोड्यूस नहीं होगा। In spite that's what she meant eclectic जो है ना, eclectic is a part You're of free that to borrow. freedom. Why not? It's so much of architecture. The world over, people have been creative, very beautifully doing things. It's how you're able to put it together. It has and to be still- original rather than copy paste. हाँ, ओरिजिनल मतलब ऐसा देखो, हम तो करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, In जो a अच्छा world today with Pinterest taking over everything, you still have to be original because that Pinterest will not fit your framework. So if you don't do your framework, then you're actually copy pasting. But if you do a framework, that reference picture taken from Pinterest will change so many times before it really fits in. It depends, कोई framework बना रहा नहीं बना रहा, ऐसे ही copy paste कर रहा है तो तो मतलब ये फ्रेमवर्क आप समझ जाओ और ways of क्लाइंट को working. कंट्रोल करो। अब तो आपको वो सब वो दैट कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। माय फेवरेट डायलॉग है टू माय क्लाइंट, एनी क्लाइंट, भाई अभी हो गया, तू ऑपरेशन टेबल पे लेट गया अभी, है ना, और मैंने तेरे को अभी एनेस्थीसिया दे दिया, Yeah. अब तू मेरे को नहीं बताना कि चाकू कहाँ से चलाना है, यहाँ पे सुई लगानी है, अब मेरे को नहीं बताना। एंड वो तो है, फिर ऑपरेशन होगा, नहीं तो फिर तू यहाँ से खत्म है, समझ जाओ ऑपरेशन टेबल। डू यू एवर टेल अ डॉक्टर कि यहाँ से स्कैल्पेल इधर से लगा उधर से लगा? नहीं बोलते ना, तब शांत बैठेंगे, मेरे को कुछ नहीं बोलना। So thank you so much for being so patient and giving such a good insight which really helped. And this last word of framework, I mean, you said it, I somewhere relate it, but I'm sure that I thought it was right somewhere. Thank you for inviting us and having us here. Thank you. It's so always much. Thank you so and all the best to both of you, all of you. Thank you.